Hello everybody, hi, my name is Isha and my sincere apologies for delay in uploading videos. I was traveling and that's why I couldn't upload them. Anyways, I'll make sure this won't happen again unless otherwise there is a very strong reason behind it. Anyways, so in our previous video, we talked about financial markets. कि financial market क्या होते हैं? Sorry, in financial Indian financial system. कि Indian financial system क्या है? किन components में वो divided है? There is your financial markets हैं आपके उसमें, आपके financial assets हैं, आपके financial your instruments हैं, आपके financial services हैं. But services, आपके instruments, आपका market and आपके assets. सो जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका फाइनेंशियल मार्केट, बिकॉज मार्केट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर में। तो मार्केट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं या फिर ये लोग ये पूछ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट। अदरवाइज दे आस्क अबाउट द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आवर कैपिटल ऑन मनी मार्केट। कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है तो व्हाट इज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऐसा सब। ओके, सो before going towards any specific market, let's just look at what our financial market is. So financial market kya hai? It's a place where all this process of interaction between the buyer and the seller, the person who wants to buy any financial instrument and the person who wants to sell that financial instrument. तो ये जो मार्केट प्लेस है जहाँ पर ये सब होता है, that place is called financial market. A marketplace where buyers and sellers interact with each other, either directly or through brokers, for purchasing and selling of financial products, claims और services. कुछ भी, आपके कोई भी financial products ले सकते हैं, आपके कोई भी financial instruments के लिए हो सकता है या कोई भी financial services के लिए होता है. Okay, so now we say that financial market is divided into money market and your capital market, but it's not actually the way we say. It's actually the unorganized market and the organized market. I'll tell you the reason why we don't even consider unorganized market is because we don't have the data. हमारे पास डेटा ही नहीं है कि कितना इंडिया का मार्केट जो है, कितनी इंडिया की बैंकिंग सर्विसेज, कितनी सब कुछ अनऑर्गेनाइज मार्केट में होती हैं, बिकॉज हम जानते ही नहीं ना. हम RBI and nobody can control these people. We don't have data, so we don't even show it, we don't even classify it. बट आपका अनऑर्गेनाइज मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट. बट जब आपको याद होगा जब आप पुरानी मूवीज़ देखते थे तो उसमें एक बड़ा सा मनी लेंडर होता था जो अपनी मर्जी पे लोगों को पैसे देता था. किसी को 10% इंटरेस्ट पे दे दिए, तो किसी को 20 पे, किसी को 30 पे. तो ही लेंड्स मनी एट हिज ओन चॉइस. जितने परसेंट पे उसका मन करता है उतने पे देगा, जिसको मन करता है उसको देगा. अगर उसे दिख रहा है कि ये बंदा नहीं दे पाएगा, मुझे गरीब है, तो उसको 100% पे भी लोन देता था एंड फिर पूरी ज़िंदगी उससे रिकवर करता रहता था. सो बिट ऑफ अ क्रूअल थिंग आपने देखी होगी विलेज लेवल, मतलब पुरानी मूवीज़ में सिमिलर है एक्चुअली. सो अनऑर्गेनाइज मार्केट में क्या है ना, आपके वो मनी लेंडर्स हैं जो those who are outside the control of our government we say, but it's actually RBI, because all the banking policies जो भी money की है सब कुछ, they are all being controlled by, laid out by RBI. So they are outside the purview of RBI. RBI have no say, no knowledge about how they carry out, who are those persons who carry out this process, because they can't just go down to the village level. So they're part of unorganized market. They are network of indigenous bankers, dealers, money lenders at local level. ओके, अब लोकल लेवल का मतलब ये है कि मैं अगर यूपी के किसी गांव में बैठ के लोन दे रही हूँ तो तमिलनाडु वाला बंदा नहीं आएगा मुझसे लोन लेने के लिए. मेरे जो गांव के आसपास के लोग हैं बस वही आएंगे मुझसे लोन लेने के लिए. दैट्स व्हाई वी से लोकल लेवल. लेकिन बैंक में तो ऐसा नहीं होता है ना. बैंक में तो बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं कि पर्टिकुलर बैंक से लोन लेने के लिए. सो दैट्स ओके ना. सो unorganized market we have dealt with. Now organized market क्या होता है? So organized का मतलब क्या होता है कि बहुत ही सही तरीके से है वो. It's well laid, well developed.
बहुत ही सब कुछ लेड आउट है उसकी पॉलिसीज़, और वो उन्हीं पॉलिसीज़ के ऊपर चलता है. दैट इज़ वाई वी कॉल दोज ऑर्गेनाइज, बिकॉज इट्स एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड. So, following all the government regulations, and now we classify them into capital and money market. Capital market I'll deal later in another video, जो सिर्फ capital market के ऊपर होगा. Okay, so just for brief idea, capital market ये जो होता है आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है. जो आपके स्टॉक एक्सचेंज वगैरह होते हैं, दे आर अंडर कैपिटल मार्केट, एंड कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. Okay, so the investments which are made for over a year, एक साल से ऊपर के, they are your capital market. दो components है, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है. ये IPO वाला मार्केट है जहाँ पे IPO आते हैं, और ये वो मार्केट है जब IPOs आ जाते हैं और फिर जब वो एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं. Now money market. So money market is mostly dominated by government, banks, larger financial institutions. हम जैसे लोग, अगर if we are very net high worth people, तो we can deal with money market, but usually individuals के लिए money market नहीं होता है. We can do it, but it is indirectly. I'll tell you how. We can do it from your money market mutual funds. कि there is a mutual fund जिसमें हमारा भी थोड़ा सा पैसा लगा हुआ है. There are a lot of people who have employed their funds, in that money market mutual fund, but we have not taken it directly. कि हम बोलें कि नहीं मुझे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दो, ऐसा नहीं होता है. मुझे ट्रेजरी बिल्स दे दो, हम नहीं ले सकते, वो कोई और लेता है. LIC ने ले लिया, UTI ने ले लिया, फिर उसका म्यूचुअल फंड बना के वो हमसे पैसा लेते हैं. So it's indirectly we are doing it, but we can't invest in money market directly by ourselves. We can't do that. Okay, so this type of market is authorized for short term investments only. Highly liquid होता है. शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली हाईली लिक्विड ही होगा. शॉर्ट टर्म का मतलब आपका लेस देन योर 1 year. एक साल से जितने भी कम के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो सारे मनी मार्केट के होते हैं, और एक साल से ऊपर वाले आपके कैपिटल मार्केट के होते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट है क्या? मतलब हाउ विल यू गेट टू नो कि दिस इज अ मनी मार्केट और दिस इज अ कैपिटल मार्केट? ये होता क्या है मनी मार्केट? सो ब्रॉडली तो आपको पता लग गया है कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, और मोस्टली गवर्नमेंट की जो इंटरमीडियरीज रहती हैं, गवर्नमेंट PSUs जो होती हैं, आपकी LIC, UTI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड जो है आपका, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो है हमारी, नाबार्ड, ये सब लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट में. ओके, सो मनी मार्केट इज अ सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट where financial instruments with high liquidity and short-term maturities are traded. So जो आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मतलब आपके 91 days, 14 days, मैक्स टू मैक्स 364 days में आपका मेच्योर हो जाएंगे, those instruments are traded in money market. Now one thing to note here is that money market, I've already told you, it is regulated by RBI. Capital market SEBI रेगुलेट करता है, मनी मार्केट RBI रेगुलेट करता है. एंड बिकॉज वाई, मतलब RBI क्यों, SEBI कर लेता ना, पर ऐसा नहीं है ना. सी एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैटर्स वो RBI ही देखता है. इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए, कब छापना है, कितना छापना है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, वो सब RBI देखता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. तो जो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें ये सब कुछ खुद देखता है RBI. दैट इज़ वाई दिस मार्केट इज ऑल्सो बीइंग रेगुलेटेड बाय RBI. So RBI control all the money and money matters and ensure liquidity and short-term interest rates in our economy. It also takes care of inflation. हमारी इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है ये भी RBI देखता है. इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो RBI पैसे इकोनॉमी से ले लेता है. How does RBI does that? I'll be making a separate video on the qualitative or quantitative measures जो RBI के होते हैं. If you might have heard of repos, reverse repo, margin standing facility, तो CLR, SLR, bank rate, तो all these things I'll be covering in another video. फिलहाल के लिए मनी मार्केट ही देख लेते हैं. ओके, सो डेफिनेशन हो गई. अब पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं,
तो पार्टिसिपेंट्स तो ऑब्वियसली एक तो वो होंगे जिन्हें लेना है, एक वो होंगे जिन्हें देना है। तो एक लेंडर्स होते हैं जिनको लेंड करना है, एक बोरोवर्स होते हैं जिनको बोरो करना है। नाउ असेंशियल्स, असेंशियल का मतलब क्या होता है? असेंशियल का मतलब होता है आपकी रिक्वायरमेंट, कि एक अच्छे ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो होती हैं आपके असेंशियल्स। तो अब यू कैन इवन थिंक योरसेल्फ कि मनी मार्केट की एक अच्छी रिक्वायरमेंट, अगर अच्छा मनी मार्केट चाहिए तो हमें क्या चाहिए? कमर्शियल बैंक तो अच्छे चाहिए ही हमें, क्योंकि कमर्शियल बैंक ही ये प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही आपकी सारी गवर्नमेंट बोरोइंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। तो कमर्शियल बैंक जो होने चाहिए, दे शुड बी हाईली ऑर्गेनाइज। सी जिस फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेल यू कि अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत हो जाता है, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। नाउ एवरीबडी हैज़ मनी। सो उससे क्या होता है, जो पहले जैसे 10 रुपये में, पहले आई वुड यूज टू से कि नहीं 10 रुपये है मेरे पास, आई वुड बाय अ ब्रेड। लेकिन अब मैं क्या बोलूँगी, नहीं नहीं मेरे पास तो 20 रुपये हैं, अभी 10 रुपये का एक और नोट है, तो आई वोंट बाय अ ब्रेड, आई बाय अ चॉकलेट। तो वैल्यू कम हो जाती है मनी की। पहले जो मेरे को 10 रुपये में एक चॉकलेट आती थी, आज मैं वो 20 रुपये में भी लेने के लिए तैयार हूँ। तो पैसे की वैल्यू कम हो गई, 10 रुपये की वैल्यू कम हो गई। दैट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा है। पहले मैं 1 लाख पे गाड़ी खरीदती थी, अब मैं उस गाड़ी के लिए 2 लाख भी देने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है। मेरे पास क्या, सबके पास पैसा है इकोनॉमी में। तो इसलिए इन्फ्लेशन आ जाता है। इट इज़ नॉट गुड। तो इसको कर्व करने के लिए, इसको डिक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि सारे बैंक से, जितने भी बैंक हैं हमारे इकोनॉमी में, सबसे वो पैसे ले लेता है। हाउ डू वी डज दैट? वो कैसे करता है कि वो अपने जो उसके पास स्टॉक्स होते हैं, जो उसके पास शेयर्स होते हैं, वो उनको दे देता है और बोलता है तुम ये शेयर्स ले लो और अपना सारा पैसा मुझे दे दो। एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई ने मतलब उनसे पैसा ले लेता है, और वो उसे अपने पास तब तक रखता है जब तक बैंक, मतलब जब तक हमारी लिक्विडिटी कम नहीं हो जाती, जब तक बाहर खड़े हुए सारे जो बैंकों के बाहर खड़े होकर लोग हो, वो बोलेंगे नहीं सर हमें लोन चाहिए, हमें लोन चाहिए। बैंक बोलेगा हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम लोन कैसे दें? तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है। पहले 10 लोग खड़े हुए थे लोन लेने के लिए, कह रहे थे हमें चाहिए 7% इंटरेस्ट रेट पे लोन। अब 7% इंटरेस्ट रेट पे 10 लोगों को लोन दे ही नहीं सकते, बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है, सारा पैसा तो आरबीआई ने ले लिया। तो बैंक क्या बोलता है, नहीं हम 7% पे नहीं, अब हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। तो 10 में से 7 चले जाते हैं, सिर्फ 3 बचते हैं। दिस इज हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द flow of money in our economy, which is a very for this thing you need a very strong central bank, and we do have it. Our central bank is very strong, autonomous. So okay, coming back to the topic, essentials of well organized money market. So as I've told you, you need a very good organized commercial banking system. Commercial banking system आपके बहुत organized होने चाहिए. They should be understanding, they should be doing everything said by RBI. तो आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए। अब आरबीआई कमर्शियल बैंक है तो डेफिनेटली यू नीड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक काम कैसे करेंगे अगर एक सेंट्रल बैंक पीछे नहीं खड़ा होगा? बच्चे काम कैसे करेंगे अगर पापा पीछे छड़ी लेके नहीं खड़े होंगे? तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक भी चाहिए टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल मनी मार्केट। अब सीधी सी बात है, एक इंस्ट्रूमेंट में तो डील नहीं होगा पूरे मनी मार्केट में, सो यू नीड टू हैव अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कभी भी ऐसा होता है ना, मतलब इफ़ यू माइट इवन फील योरसेल्फ एक ही चीज़ करते करते हम बोर हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाता है, तो वी नीड डिफरेंट थिंग्स टू डू इन आवर लाइफ। सिमिलरली एक ही इंस्ट्रूमेंट में कोई भी बोरोवर, कोई भी लेंडर कब तक अपना इन्वेस्ट और बोरिंग करेगा? तो दे नीड अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चलो इस साल हम ऐसा करते हैं, कमर्शियल पेपर्स में पैसा डाल देते हैं, अगले साल हम करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में डालेंगे, उसके बाद हम ट्रेजरी बिल्स देखेंगे। तो देर आर वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। Now you have to have a presence of secondary market. Now why do we need that? Okay, so suppose करो I invested a certain amount of money, LIC ने अपना थोड़ा पैसा कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल पेपर्स में लगा दिया। Now LIC need fund. Now अभी उसको मालूम है कि मेरे को अभी तो नहीं मिलने वाला कमर्शियल डिपॉजिट का पैसा। मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 80 रुपये उठा के अपने कमर्शियल उसमें
लगा दिए कमर्शियल सर्टिफिकेट में। तो अब मुझे तो ये 1 साल के बाद मिलेगा, तो मुझे अभी चाहिए 80 रुपये, मैं क्या करूँ? तो वॉट इट विल डू इज़ इट विल गो टू अ मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पे वो अपना कमर्शियल सर्टिफिकेट दे देगा और उनसे पैसे ले लेगा। 80 रुपये का उसको मिल जाएंगे, उसके पास में पूरे पैसे हो जाएंगे, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है मनी की वो उसकी पूरी हो जाएगी। सो यू नीड एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट फॉर दैट, जहाँ पे आप अपना ये सेल कर सको। लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, बिकॉज लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए होंगे। रेगुलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज भी होनी चाहिए, एंड दैट टू रेगुलेटेड फॉर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। ओके, सो नाउ व्हाट विल डिस्कस इज फंक्शंस क्या होते हैं। अब मनी मार्केट, ठीक है, हम बोल रहे हैं मनी मार्केट ऐसा होना चाहिए, मनी मार्केट वैसा होना चाहिए, मनी मार्केट होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए? आई मीन ये तो हमने वाई वॉट हाउ सब कुछ डिस्कस कर लिया, बट वाई डू वी नीड अ मनी मार्केट, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। वॉट हाउ शुड सब कुछ डिस्कस कर लिया, बट वाई डू वी नीड मनी मार्केट? व्हाट इज़ द रीज़न वाई डू वी नीड इट? चाहिए क्यों? करता क्या है ऐसा है मनी मार्केट? तो मनी मार्केट क्या करता है? आई टोल्ड यू ऑलरेडी, जो हमारी इकोनॉमी की लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करता है। सेंट्रल बैंक को पता ही कैसे चलता है कि हमारी इकोनॉमी में इतना पैसा है और इतना नहीं है? थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी मनी मार्केट के थ्रू ही, मतलब हमारा हमारा मनी मार्केट जो है उसमें कितना पैसा लगा हुआ है, सब कुछ क्या है, वो सब सेंट्रल बैंक देखता है, बिकॉज मनी मार्केट आरबीआई गवर्न करता है। तो आरबीआई को पता होता है, उसी हिसाब से वो सारी पॉलिसीज़ फ्रेम करता है, जो भी उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो फ्रेम करता है। इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए इस साल का वो फ्रेम करता है, इंटरेस्ट रेट कितने होने चाहिए वो फ्रेम करता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मनी मार्केट। ओके, सो we'll just go one by one. Helps maintain the demand and supply equilibrium. Now just think कि there are 100 people, okay, over here. There are 100 people who wants loan, okay, and there are exactly 100 banks who are ready to supply those loan. तो मार्केट में क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। जितने लोगों को जितना चाहिए था उतना ही उनको मिल भी गया। 100 रुपये चाहिए थे, 100 रुपये मिल गए। तो विल डू यू थिंक देयर विल बी एनी डिस्प्यूट, कुछ भी, कोई भी सरप्लस डेफिसिट कुछ होगा? जितना सरप्लस था, इन लोगों के पास सरप्लस था, इन्होंने ये इनको दे दिया जिनके पास डेफिसिट था। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज़ अ मार्केट। एक मार्केट था जहाँ पे ये गए बोले नहीं मेरे पास बच रहे हैं 100 रुपये, तुम ये ले लो और ये उनको दे दो जिनको ये चाहिए, जिनको ये चाहिए 100 रुपये आप उनको दे दो। तो ये इसी वजह से हुआ, बिकॉज वी हैव अ प्लेस कॉल्ड मार्केट, जहाँ पे जो जिनके पास एक्सेस में है वो जाते हैं, वो बोलते हैं, वो अपना पैसा देते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, और फाइनली ये पैसे उनको चले जाते हैं जिनको ये चाहिए, जिनके पास डेफिसिट है उनको ये पैसे चले जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ मनी मार्केट ओनली दिस दैट द सरप्लस और डेफिसिट जो है इकोनॉमी का, इट जो ये इसका एक बैलेंस हो जाता है कि ना सरप्लस है ना डेफिसिट है, सबके पास पैसा है, सब कुछ जिनको भी चाहिए सबके पास है। हेल्प सेंट्रल बैंक इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि सेंट्रल बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। हेल्प सेंट्रल बैंक टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी बता दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हेल्प करता है हमारा मनी मार्केट। ऑल्सो मीट द शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब मनी मार्केट के थ्रू ही आपको होती हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट को कोई फ़ंड चाहिए होता है, अभी गवर्नमेंट को भी फंड चाहिए होता है, हाँ बता दूँ। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट छाप लेती है उसको जो भी पैसा चाहिए होता है, ऐसा होता तो फिजिकल डेफिसिट कभी होता ही नहीं। तो जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, और क्यों चाहिए होता है? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, गवर्नमेंट रोड बिल्ड करती है, गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है, गरीब कल्याण योजना, सिलेंडर देती है फ्री में, तो सबके लिए पैसा चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट के पास जो
जो डेफिशिट हो जाता है जब, या फिर जब उसे पैसा चाहिए होता है, तो वो कहाँ से लेती है? वो ऐसे नहीं कि मतलब बोली लगाती है कि लाओ भाई पिलाओ पैसा लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसा मांगती है। पहले वो आरबीआई से लेती है, आरबीआई बोलता है नहीं हमारे पास तो नहीं बचा, सब खत्म हो गया है, तो वो मार्केट में जाती है, सारे बैंक, LIC, UTI इन सबको बोलती है तुम ये सर्टिफिकेट्स लो और ये ट्रेजरी बिल्स लो और मुझे पैसे दे दो। ये भी जब कर लेते हैं उनमें, फिर और पैसा चाहिए होता है, तो फिर ये वर्ल्ड ये फॉरेन मार्केट्स में जाती है, फॉरेन मार्केट से पैसा लेती है। जब फॉरेन मार्केट से भी पैसा ले लेती है और फिर भी और चाहिए होता है, तो नाउ इट गोज टू फिनेंशियल, जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक है, आपका IMF है, तो उन सब के पास जाती है, उन सब से पैसा लेती है। ओके, सो आपके शॉर्ट टर्म फिनेंशियल शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के, ये भी आपके कैरी आउट होते हैं। Now, the money market is one of the prerequisites of nation's economic progress. तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट हमारा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए होता है। जो हमारी कंट्री की इकॉनमी होती है, जो हम प्रोग्रेस बोलते हैं, हम इसे हर साल देखते हैं, हम हर साल अपना GDP कैलकुलेट करते हैं कि हमारा GDP कितना है। नाउ हमारी रैंक क्या है GDP की, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन टर्म्स ऑफ GDP। तो नाउ इज 7th एक्चुअली, बट तो ये हमारी जो रैंक है, ये सब कैसे आइडेंटिफाई होती है? ये सब हमारा जो नेशनल प्रोग्रेस है हमारी कंट्री का, वो ऐसे ही आइडेंटिफाई होता है। मनी मार्केट के थ्रू ही हमारा कंट्री नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है हमारी, वो हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। मनी मार्केट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स इन द इकोनॉमी। अब सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट रोड बना रही है, तो इंडस्ट्री को ही फ़ायदा हो रहा है ना, कॉमर्स को ही फ़ायदा हो रहा है ना। इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो डिपेंड ऑन इट। जो हमारा इंटरेस्ट रेट, मैं बता ही चुकी हूँ आपको ऑलरेडी है कि RBI तो सब चीज़ें गवर्न करता है ना, इन्फ्लेशन भी, इंटरेस्ट रेट भी। तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है कि सारे बैंक ऑलमोस्ट हर एक ही रेट पे पैसा देते हैं। यू माइट नॉट हैव सीन अ वास्ट डिफरेंस। हाँ, थोड़ा बहुत होता है कि SBI 7% पे दे रहा है तो आपका ICICI 7.2% पे दे रहा होगा, बट दैट्स 0.2, इट्स एक्चुअली बिकॉज उनकी वर्क वो इतने बड़े नहीं हैं, इतने लार्ज लेवल पे नहीं है, तो उनका कॉस्ट इतनी कम नहीं हो पाती है। SBI की कॉस्ट इतनी नहीं है, तो इस वजह से वो 7% पे दे देता है। ICICI की कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसलिए वो 7.2 पे देती है। पर ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि SBI 7% पे दे रहा है एंड आपका HDFC 12% पे दे रहा है या 10% पे दे रहा है। इतना डिफरेंस नहीं होता है। पर बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो होते हैं, इनका भी एक अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सब बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। सबका एक बेस रेट होता है, उसी बेस रेट के अकॉर्डिंग उस पर थोड़ा सा अपना एक्सपेंसेस का रेशियो लगा के, डिफ़ॉल्ट रिस्क वगैरह सब लगा के बैंक्स लोन देते हैं। और एक्चुअली टेन्योर पे भी डिपेंड करता है। 2 साल का है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, क्योंकि 2 साल में तो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई 40 साल का लोन लेगा तो कितना तगड़ा वाला रिस्क है, डिफ़ॉल्ट रिस्क है कि नहीं, एक तो 40 साल बाद मिलेंगे हमारे पैसे, तो उसमें परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ हाउ द इंटरेस्ट रेट is also being categorized, different interest rate for different tenure। तो ये आपका ये भी हमारा सब RBI करता है। Okay, so now what is left in money market is instruments of money market। तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा because there are various instruments and you need to go thorough with all of them। I'll be taking another video for all the instruments of money market। So just wait for me to upload another video on instruments of money market। So this video is complete here. If you like my video, do subscribe my video and like it। Thank you।